السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راس العلم معرفۃ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، میں آج درس قرآن نہ کر کے خاص موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا ٹاپک یہ ہے کہ مدرسہ تو ماڈرن ایجوکیشن، یعنی مدرسے میں اب مدرسے کو عصری تعلیم کے ساتھ چلانا کتنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ یہ پوری تقریر سے آپ 100% اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی قرآن حدیث سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے، اور نظریے سے جو ہے وہ اختلاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ تو ہم اس میں اپنی بات رکھیں گے، آپ ہم کو ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے تقریر کو سنیں، ایک پارٹی کی حیثیت سے تقریر نہیں سنیں کہ ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ موقف ہے، یہ اس حیثیت سے تقریر نہیں سنیں ہماری، کیونکہ اگر اس حیثیت سے سنیں گے تو آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو حاصل ہونا چاہیے، بلکہ میں دونوں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور دونوں کے فائدے اور دونوں کے نقصانات پر ہم بھرپور انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آج یہ ختم ہو جائے تقریر، اس سے ہو سکتا ہے 2 یا 3 پارٹ ہو، تو ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ نیشنل نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ایشو ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے اور بھی رائے آویں اور ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور لوگوں کی بھی اگر اصلاح ممکن ہو تو اس سے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بنیادی بات بتا دیں پہلے بریکٹ کی، کہ یہ 2 نظریے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں، 2 نظریہ ہے۔ ایک نظریہ سر سید احمد صاحب کا ہے، اور ایک نظریہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب انگریزوں نے اس دیش پر قبضہ کیا، بلکہ قبضہ کرنے کے ارادے سے جب وہ داخل ہوئے، تو سر سید جیسے قابل آدمی نے یہ محسوس کیا کہ اب یہاں بغیر انگریزی تعلیم حاصل کر کے عصری تعلیم کے بغیر مسلمانوں کا پیٹ پالنا ایک مسئلہ ہو جائے گا، لہذا انہوں نے اس بات کو فوکس ڈال کر کے، اور انہوں نے اسی طریقے کی بات بھی کی، اس بات کا وہ خود اقرار بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد جب ڈالی تو انہوں نے ایک دم اس کے اپوزٹ ایک نظریہ پیش کیا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، غور سے سنیے گا ایک بات۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ انگریزوں نے ہم سے اقتدار چھین لیا ہے، اور اب ہمارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے دین بھی چلا جائے۔ تو انہوں نے اس نظریے سے مدرسہ قائم کیا۔ جو لوگ بھی اس کے اگینسٹ میں بات کرتے ہیں، اگر وہ اس نظریے کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ محسوس کر رہے ہیں وہ اپنے حس کو ہلکا کر لیں گے۔ لیکن اگر اس وقت ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں وہ ہے کہ ہر تعلیم کا مقصد پیٹ ہے، اگر یہ نظریے سے آپ جب دیکھیں گے تو یقینی بات ہے کہ مدرسہ ایک بہت بڑا برڈن ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ان دونوں نظریوں کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک سر سید کا، میں کسی کے نظریے کو، سر سید کے نظریے کو میں ذرا برابر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ڈے 1 سے، پہلے دن سے یہ دونوں الگ الگ نظریے قائم ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو میں نے بات کرتے ہوئے یہ بات بھی بتائی تھی کہ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ مدرسے میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بچے کو فری پڑھائیں گے، ہم بچوں کو جو ہے وہ کپڑا دیں گے، سب کچھ، یہ آخر کیوں ایسی بات آئی؟ کہاں سے یہ بات آئی؟ سب سے پہلے یہ کیسے بات آئی؟ حالانکہ تعلیم تو بہت پیسہ مانگتی ہے، لوگ ہزاروں کروڑوں روپے خرچہ کر کے بچوں کو کیا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ اس تعلیم کے لیے آخر فری کی بات کیوں کہی گئی؟ اور وہ فری کی بات جو کہی گئی وہ کیا ہو گئی، اب لگاتار چلنے لگی، اور مدرسے جو ہے وہ فری میں چلائے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو اصل وجہ وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے یہ طے کیا، جب 1857 میں اقتدار ہاتھ میں آیا، تو آنے کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ یہ سب پلاننگ ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، 2 بنیادی پلاننگ ہندوستان کے لیے ایجوکیشن کے بارے میں انگریزوں نے کیا۔
ये बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट भी जो है ना इस बात को महसूस नहीं कर पाए, जो हमारे अकाबरीन उलमा ने इन बात को महसूस किया। अंग्रेजों ने इस देश में तालीम के लिए दो नजरिया कायम किया। पहला नजरिया ये कायम किया गया कि इनको ऐसी तालीम दी जाए कि ये बाअखलाक कतई न बने। ये पहला नजरिया उनका था। दूसरा नजरिया था कि इनको जो भी तालीम दी जाए वो क्लर्कल लेवल की हो, टेक्निकल लेवल की नहीं हो। इसलिए यहां पे क्या होता था, लोग, हम अपने जमाने तक बात करते हैं, 1980 तक की बात करते हैं कि लोग 12वीं करते थे, BA करते थे, MA करते थे, यही होता रहता था। ये तो 1980 के बाद, उसमें सबसे पहले कर्नाटक पूरे भारत में कि जिसने इस बात को महसूस किया कि ये हमको अपाहिज बनाने का तरीका बयान किया जा रहा है, तब यहां पर टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू हुआ और फिर पूरे भारत में धीरे धीरे अब जो कुछ हो रहा वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। तो उनके तालीम के नजरिए में दो बातें थी कि नंबर एक, ऐसी तालीम दी जाए कि ये भारत के लोग हमेशा हमारे मोहताज रहें और क्लर्कल तालीम हासिल करें, और नंबर दो कि ऐसी तालीम दी जाए कि ये कभी भी बाअखलाक बनकर नहीं हो, और खासकर मुसलमान इसमें एक बड़ी तादाद हमारी अपोजिट है, ये ऐसे बद अखलाक लोग पैदा हों कि दुनिया में ये हमेशा बदनाम रहें। आप देखें, दुनिया का एक हिस्सा हम भी जानते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, बाहर दुनिया में, तो हम इस बात की बड़ी कोशिश करते हैं कि आपके स्कूल कैसे चलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वो सारी बदअखलाकियां हम पढ़ने के बावजूद भी पाई जाती है। तुम्हारे यहाँ उसी सिलेबस को पढ़ करके तुम्हारे यहाँ बदअखलाकी नहीं पाई जाती है। बदअखलाकी से मुराद क्या है कि हम अपनी जात से दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में जर्रा बराबर की किसी किस्म की हिस्स महसूस ही नहीं करते। वो यूरोप जिसको हम बहुत बुरा जानते हैं, वो इस मामले में 1% भी चाहता है कि हमारी जात से तकलीफ नहीं पहुंचे। उसने उसको कहां से कंट्रोल कर रखा है, प्राइमरी से लेकर के हायर लेवल तक तालीम का जो निसाब उन्होंने रखा है, जो तब जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो ममालिक हैं कि जहां पर शुरू में बच्चों को सिर्फ अखलाकियात सिखलाया जाता है, बच्चा कुछ भी नहीं। तुमको उन्होंने क्या दिया है, LKG का बच्चा इतना वजन किताब लेके जाता है कि उसके वजन के बराबर किताब का वजन होता है। आपको किताब में और सिलेबस में उसमें क्या कर दिया, ऐसा मसरूफ कर दिया कि दो चीज बच्चे से छीन ली गई। बच्चों से बचपना छीन लिया गया, बच्चों से वो चीजें छीन ली गई कि जो यहां से डेवलप करके इनको अखलाकियात सिखलाए जाते। मैं अपनी जापान की एक बात बता रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं जब कहीं देश जाता हूं तो बाजार घूमने का मुझे शौक नहीं है, मॉल घूमने, मैं इस किस्म की चीजें स्कूल देख लेता हूं जो हमारे रिलेटेड चीजें हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली बात। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये जो बच्चे आपके हैं इतने कहां से अखलाक सीखते हैं, आपके यहाँ ना कुरान पढ़ाया जा रहा है ना हदीस पढ़ाई जा रही है, तो उन्होंने कहा ये सब स्कूल से सीख कर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनका इम्तिहान लीजिए बच्चों का। हमारे ऐसे बैठे थे हॉल में, उन्होंने कहा कि इनको ये बताया गया है कि अगर कोई आदमी कहीं भी कचरा डालता है तो तुम उसको मना करने के बजाय उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डालोगे। उन्होंने कहा आपको टेस्ट करना है, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। ये बच्चे बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे थे, 6-7 साल के। मैंने टिश्यू उठाया और ऐसे पोंछा और ऐसे हॉल में जैसे सोफा पे बैठा था ऐसे डाल दिया। थोड़ी देर के बाद एक बच्ची उनकी उठी, रही होगी 5-6 साल की बच्ची उठी। उठने के बाद उसने टिश्यू उठाया और कमरे के कोने में, हॉल के कोने में डस्टबिन रखा था, लाकर डस्टबिन में डाल दिया। वो मुझसे कहने लगे, मौलाना साहब आप अगर ऐसा 10 मरतबा करेंगे तो ये बच्चा 10 मरतबा यही करेगा, आपको आकर के नहीं बोलेगा। तो पता क्या चला कि हमको जो यहां पर एजुकेशन के लिए निजाम किया इन लोगों ने, वो दो निजाम किया कि आप बद अखलाक बने और आप क्लर्कल बने। तो ये इस पूरे निजाम में ये बात हो गई। अब जब मदरसे की इसकी जब तालीम की बात आई अंग्रेजों के सामने, तो उन्होंने ये देखा कि मुसलमान जो है ना, ये हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो इन्होंने एक सिस्टम किया, दो कानून तो नहीं बनाए, लेकिन एक सहूलत थी कि अगर मुसलमान बच्चा हमारे यहां आकर के पढ़ेगा तो हम उसको कोई फीस नहीं लेंगे। बाद स्कूल वालों ने ये किया कि कोई भी पढ़ेगा हम फीस नहीं लेंगे। अब हमारे बच्चे क्या होने लगे, उधर जाने लगे,
उसके जवाब में मदरसे वाले ने मजबूर होकर के फ्री की तालीम का निसाब रखा कि वहां फ्री के चक्कर में वो अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं और अपने दीन को और अपने मजहब को, सिर्फ तालीम को छोड़ रहे हैं। ये मजबूर होकर के हमने इसको फ्री में रखा, वरना दुनिया की कोई तालीम फ्री में नहीं होती है। बात समझे मेरी? तो ये बीच की एक बात थी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी इस टॉपिक पर सोचते हैं या बोलते हैं, उनको चाहिए कि पहले सर सैयद का एक नजरिया और कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का एक नजरिया, इस दोनों नजरिए को पहले समझ लें और इन दोनों के बीच में अंग्रेजों के उस फलसफे को जान लें। उसके बाद फिर अब इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। बात समझे मेरी? नंबर एक बात। अच्छा, ये जो लोग सोच रहे हैं कि मदरसा मॉडर्न हो जाए, मदरसे में असली तालीम हो जाए, हमारा बच्चा मौलवी भी बन जाए, हमारा बच्चा साथ में डॉक्टर भी रहे, हमारा बच्चा मौलवी भी रहे, इंजीनियर भी रहे, इसकी सोच की 4 बुनियादी वजह है। हम एक एक पर बात करेंगे, क्योंकि जब छेड़ा है तो पूरे मौजू को जो है, जो भी हम समझ पा रहे हैं वो आपको बयान करेंगे। पहली वजह बुनियादी जो है, इसमें 4 लोग हैं शामिल। कितने लोग हैं? 4 लोग से मतलब 4 लोग नहीं, मतलब 4 ग्रुप है। तो इसमें पहला जो ग्रुप है ना, वो बहुत खैरख्वाह ग्रुप है। वो हमारी खस्ता हाली, वो हमारी माशी हालत, वो हमारा पेवंदकारी, 3 बातें कह रहा हूं। क्या पेवंदकारी? क्या कि वो देख रहा है कि मौलवी, उसको मोहब्बत है हमसे, हमारे लिबास से मोहब्बत है, हमारी तालीम से मोहब्बत है, उसको दीन से मोहब्बत है। वो बेचारा मोहब्बत में ये कह रहा है कि यार इतनी मेहनत से ये लोग पढ़ते हैं, दिन करते हैं, पढ़ते हैं, और बेचारों को पैसा भी कितना मिलता है, 8 से 10,000 रुपए, 12,000 रुपए। तो ये उसके दिल में आता है कि इसकी क्या वजह है। तो उसके बाद ये समझ में आती है कि अगर इनको मॉडर्न बना दिया जाए मौलवियों को, तो ये इनकी इकोनॉमिक क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। तो ये खैरख्वाह लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, जो हमारे बारे में हमारी खस्ता हाली, हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन, और तीसरी चीज वो देखते हैं कि ये इस सोसाइटी में सेट नहीं हो पा रहे हैं। सोसाइटी एक तरफ जा रही है, मौलवी हजरात एक तरफ जा रहे हैं, तो इनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है। उस मोहब्बत के बुनियाद पर वो इस मसले को इस अंदाज में हल करना चाह रहे हैं। हम इस पर अभी बात करेंगे कि क्या आपका ये सोचना, हम आपकी नीयत पर 1% भी शक नहीं कर रहे हैं, एकदम नीयत सही है, लेकिन क्या आपका ये सोना मसले का हल है? हम इस पर बात करेंगे। ये पहला गिरोह है। मैं बात आपने समझा पा रहा हूं ना? नंबर 2, दूसरा गिरोह इसमें मुनाफिकीन का है। मुनाफिकीन कौन है? ये जो आपको मुख्तलिफ किस्म के का अट्रैक्शन दे रहे हैं कि आप हमसे कंप्यूटर ले लीजिए, आप हमसे तालीम हासिल कीजिए, और मदरसा जो है मॉडर्न होना चाहिए। ये जो सरकार आपको प्लानिंग में लाना चाह रही है, वो ये कह रही है, अगर उसको इतनी ज्यादा फिक्र है कि बेरोजगारी दूर हो जाए मौलवियों की, ये मौलवी 3% के बजाय आप 97% की बेरोजगारी के दूर करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे शहर में मैं एक शहर का डाटा ले लेता हूं। पूरे हुबली शहर में अगर कोई मौलवी बेकार होगा तो ज्यादा 1 या 2 आदमी बेकार होगा, लेकिन मैं हजारों ग्रेजुएट को जानता हूं जो दर की ठोकर खा रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं है। उनकी फिक्र आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 3% की फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान इसलिए है कि अगर आप वाकई में मुखलिस हैं, मुनाफिक नहीं हैं, तो सबका साथ सबका विकास में 97 ज्यादा परसेंटेज है, बनिबत 3% लोग मदरसे में आते हैं। ये 3% को बर्बाद करने की पूरी तरकीब है। क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? ये सीखा है उन्होंने अंग्रेजों से। और से सुने एक बात, ये सीखा कहां से है? अंग्रेजों से सीखा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये इनको बता करके गए हैं, इनको नहीं पूरी दुनिया को बता कर गए हैं कि मुसलमानों की लीडिंग पावर आलिम के हाथ में है। इनका एतमाद आलिम पर से खत्म करो। जितना आलिम पर से ये खत्म होते जाएंगे, उतना फिर मुसलमानों को परेशान करने में, मुसलमानों पर नेतागिरी करने में, मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करने में सबसे आसान हो जाएगा। लिहाजा इस अंदाज में अगर वो करें कि हम आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो सब कोई भी नहीं बनेगा। ये इस अंदाज में आ रहे हैं कि साहब ये 3% लोगों की हालत ऐसी खराब है, यानी ऐसा लगता है कि अभी रो पड़ेंगे बात करते हुए कि इतनी हालात खराब हैं और ये बच्चे जो हैं इतनी मेहनत करते हैं। अरे मेहनत करते हैं 3% को तुम छोड़ दो, 3% ठीक है, बेरोजगार नहीं है,
97 में कितने लोग बदला, उनका मसला हल करो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो लोग एजुकेशन लाइन में, क्योंकि हमारी दो ही लाइन है बुनियादी तौर पर, या तो हम मस्जिद के मेंबर से जुड़ेंगे, मेहराब से जुड़ेंगे, और या किससे जुड़ेंगे, मदरसे से जुड़ेंगे। आज भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तनख्वाहें मस्जिद के इमाम और मदरसे के मुअद्दिस से कम है, उसके बारे में तुम कोई चिंता नहीं कर रहे हो। भाई आप जा करके प्राइवेट स्कूलों का देख लीजिए ढांचा, 2,500, 3,000 और 4,000 में आज भी पढ़ा रहे हैं लोग, और उनसे अच्छा पढ़ा रहे हैं जो 70,000 ले रहे हैं। ये 70,000 वालों के बैच में इनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? तो ये एक दूसरा तबका है जो खैर ख्वाही दिखला रहा है और अंदर से मुनाफिक है। तीसरा तबका इसमें है, हम इस पर सब पर बात करेंगे, अभी एक एक पर बात करेंगे। तीसरा तबका इसमें है, 1980 के बाद ये तबका पैदा हुआ है जो कॉमर्शियल प्लस खैरख्वाह है। क्या है? कॉमर्शियल भी है और अंदर से खैरख्वाह भी रखता है। उसने ये देखा कि मुसलमानों में एक नजरिया कायम हो रहा है जो 1980 से पैदा हुआ है तकरीबन, कि हमारा बच्चा दीनदार भी हो, लेकिन हमारा बच्चा दीनदारी के साथ साथ क्या हो, दुनिया भी हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब ये नजरिया जब उसने देखा तो होशियार आदमी की पहचान ये होती है कि आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके हम अपना फायदा बना लें। उसने देखा कि मुसलमानों में ये बात आ रही है, क्या कि बच्चा मदरसा में भी जाए लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर भी बने। अब उन्होंने इस नजरिए को हवा देना चाहा कि ये नजरिया बढ़ना चाहिए, और इन्होंने कॉमर्शियल बना करके इस मैदान में उतर आए। अब इस वक्त भारत में कम से कम 50 से 60 ऐसे मदरसे हैं, बल्कि इससे ज्यादा हैं, कि जो 1 लाख रुपए सालाना फीस बच्चे से ले रहे हैं। कितनी? 1 लाख रुपए सालाना फीस बच्चे से, और आपसे क्या कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे को हाफिज बनाएंगे, हम आपके बच्चे को हाफिज के साथ साथ असली तालीम भी देंगे। अब चूंकि उनको ये बात मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सब कॉमर्शियल हैं और मुखलिस नहीं है, मुखलिस भी हैं, उसी नाम से दीन की खिदमत भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कॉमर्शियल ज्यादा हैं और मुखलिस क्या हैं, कम है। अब उन्होंने 1 लाख रुपए फीस रख दिया है, रखने के बाद स्कूल चला रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह ताला बरकत दे, तरक्की दे। मैंने उनसे पूछा, ऐसे लोगों से मेरी मीटिंग होती है, बातें होती, मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आपने हाफिज बनाया? उन्होंने कहा हमने इतने हाफिज बना दिए और हमने 12वीं भी पास करा दिया। हमने कहा ये बताइए कि वो हाफिज बनाने के बाद 15 साल 20 साल से आप इस निजाम को चला रहे हैं, इस 15-20 साल में एक हाफिज बताइए कि जिसने आपके यहाँ से एसएसएलसी भी कर लिया हो और हाफिज बन गया हो और फिर रमजान में उसने तरावी भी सुनाई हो। एक आदमी ऐसा भी होना चाहिए। तो आप पेरेंट्स ने यह समझा कि बच्चा हमारा क्या है, दीनदार बन गया है, और बच्चा हमारा साथ साथ में क्या हो रहा है, 12वीं भी पास कर लिया। ये अट्रैक्शन है बहुत अच्छा। तो अगर आप इस किस्म का कोई भी मदरसा खोलेंगे तो लोग उसमें क्या करेंगे, पैसा भी देंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन नतीजा जब बरामद करने बैठेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा नहीं निकल पाएगा। तो ये तीसरे लोग हैं जो कॉमर्शियल हैं, लेकिन कुछ तो टोटल कॉमर्शियल है, उनको आपकी दीनदारी से कोई मतलब नहीं, शोबाजी कर रहे हैं। बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़ा इदारा है, मैं गया, मुझे बुलाया गया इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। मैं जब उनके कैंपस में दाखिल हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जिस तरह से लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिल करके बैठ करके हंसी मजाक, वो सारा का सारा कैंपस के अंदर हो रहा है इस्लाम के नाम पर। हमारा कहना, मैंने जब उनसे बात किया, मैंने खुल करके उनसे कह दिया, हमने कहा कि ये हमको बेवकूफ बनाने का तरीका है। लोग क्या समझ रहे हैं कि आपके यहाँ बच्चा हमारा इसलिए दाखिल हुआ है कि बच्चा दीनदार है, आप तो दीन के नाम पर बददीनी कर रही हैं। वो यूनिवर्सिटी तो पहले से कह रही है कि भाई यहां पर दीन नहीं है, आप अपने आप को संभालिएगा। तो वहां पर तो आदमी ज्यादा अलर्ट रह सकता है क्योंकि उसको अपनी जाती तौर पर संभालना है। आपने तो हमसे कहा है कि हम आपके बच्चे को संभालेंगे, आप चिंता नहीं करें। लिहाजा नतीजा क्या निकल रहा है कि ये कॉमर्शियल लोग इस लाइन से घुस करके इस नजरिए को डेवलप कर रहे हैं कि मदरसे को मॉडर्न होना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इस्लामी कल्चर में पढ़ाएंगे, इस्लामी तहजीब में पढ़ाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, टोपी लगा दी और टाई लगा दी। आप देखें, टोपी लगा दिया है और टाई भी लगा दिया है। कुछ लोगों ने क्या किया है, टाई उतार दिया है और टोपी लगा दिया है। अच्छा,
एक जगह तो ऐसा भी देखा बच्चियों को कि स्कार्फ लगा दिया है और स्कर्ट पहना दिया है, स्कार्फ लगा रखा है और स्कर्ट पहना रखा है। ये सब क्या कर रहा है? ये उनके कॉमर्शियल और प्लस खुलूस दोनों को, टोपी तो बता रही है कि मुखलिस है और टाई बता रही है कि कॉमर्शियल है। अच्छा, नतीजा क्या निकल रहा है कि जिनको शिकस्त देना है आपको, जिनके लिए ये सब तैयारी की जा रही है कि हमारे बच्चे हाई फाई हो जाएं, वो लोग 300 साल 400 साल से इस्टेब्लिश है, 300-400 साल से उनकी बिसात बिछी हुई है। ये आज की जो टोपियां हैं ये टाई को शिकस्त नहीं दे सकती। टाई को शिकस्त देने के लिए क्योंकि आप 300 साल पीछे हैं तो 3 गुना आपको पहले दिन से एडवांस होना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उनको तब 100 साल में पकड़ पाएंगे। अगर 3 गुना हम एडवांस होंगे तब 100 साल में जाकर के क्या कर पाएंगे, उनको पकड़ पाएंगे। हमने आपको बेवकूफ बना रखा है। हम पहुंचते हैं आपके घर में, मौलाना साहब आए, बेटा इनको बाथरूम में जाने की दुआ बताओ मौलाना साहब को। अच्छा, मौलाना साहब को मस्जिद में जाने की दुआ बताओ। दूसरे साहब आए टाई, अच्छा इनको शाहरुख खान का गाना सुना बेटा। वो ये दोनों तरीके के लोगों को, वो दोनों को हमको समझ रहे हैं कि हम मौलवी हैं, हमको वो बेवकूफ जान रहे हैं। हम ये नहीं जान रहे हैं कि इन दुआओं से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। प्रॉब्लम दूसरे तरीके की है, मसाइल दूसरे तरीके के हैं। तो ये बेवकूफ बनाया है उनको पेरेंट्स ने, और पेरेंट बेवकूफ बना रहे हैं हम जैसे लोगों को, कि ताकि उनको मालूम क्या ये लोग बोलने वाले लोग हैं, तो क्या बोलेंगे जा करके, हाँ भाई बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह, बच्चे गए तो फटाफट दुआ थे। उन्हें मालूम मौलाना सिराज दूसरे तरीके के आदमी है। तुम हमको जब दुआ सुनाते हो तो हम मजीद कंफ्यूज होते हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम उसकी असल जब जिंदगी देखते हैं तो उसके अंदर वो चेंजिंग और तब्दीली मौजूद नहीं है। तो ये तीसरा तबका है जो इस किस्म के नजरियात को डेवलप कर रहा है। चौथा तबका जो बहुत ही खतरनाक है और बहुत सादा है, बहुत ही सुनिए। आपको मालूम है ये लिखने वाले और ये हम बोलने वाले, जैसे हम बोल रहे हैं, हम लिखने वाले और हम बोलने वाले, एक बड़ा तबका ऐसा है कि हमने एक बात कह दी, नई बात कह दिया, आपको अच्छी लग गई, आप मेड इन सिराज करके आपने उसका प्रचार शुरू कर दिया। उस नजरिए के नुकसान फवायद आपको मालूम ही नहीं है। एक बड़ा तबका है जो लिख रहा है, जो पढ़ रहा है, वो खुद से नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने कट किया, पेश किया, और तसनीफ बाई मौलाना अहमद सिराज साहब हो गई। मौलाना अहमद सिराज साहब जिन लोगों से उठा करके लिए हैं उनको पता भी नहीं है कि ये साहब अंदर से कैसे हैं और बाहर से कैसे हैं। ये सादा लौह ने ज्यादा हालात को खराब कर रखा है। समझे नहीं मेरी बात? जो लिख रहे हैं आपके सामने, जो बोल रहे हैं, अब मेरी तकरीर से एक आदमी मुतासिर हो गया, उसे कुछ नहीं मालूम है। अब अगर दोनों तरीके के मुतासिर हो सकता है, या तो मुस्बत मुतासिर हो सकता है या मनफी। अब मुस्बत मुतासिर हो गया तो वो पूरी तकरीर को अपने नाम पे तकरीर करेगा। अब जहां पे करेगा, अरे यार ये बहुत काबिल आदमी है, ये तो बहुत अच्छी सोच रखता है, इतनी गहराई से सोच रहा है वो। ये अब वो अगर सही आदमी की बात उन्होंने नकल कर दिया तो बेहतरीन बात है, और अगर कहीं गलत नजरिए को उन्होंने नकल कर दिया तो वो गलत के प्रचारक हो जाएंगे। तो ये 4 तरीके के लोग हैं जो इस किस्म के नजरिए को दुनिया में पेश करना चाहते हैं कि मदरसे को मॉडर्नाइज होना चाहिए और मदरसा के अंदर असली तालीम का भरपूर बात आनी चाहिए। यहां तक बात समझे मेरी? समझ पा रहे नहीं? अच्छा, अब चलते हैं कि पहली बात, 4 आदमियों की कितनी बातें हैं। ये जो पहला तबका है, वही ख्वाह जो तबका है, जिसको मैंने कहा कि जो बेचारा हमारी माशी हालत को देख करके चाह रहा है कि ये लोग अंग्रेजी तालीम भी हासिल कर लें ताकि इनकी रोजी रोटी क्या हो जाए, सही हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तजुर्बा ये है, मुशाहिदा ये है, दोनों तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है कि अगर तुमने मौलवी को इस लाइन में पढ़ने के बाद उस लाइन में दाखिल किया तो ये इस लाइन का नहीं रह जाता है। ये तजुर्बा है। आपकी जो बुनियादी वजह है उससे आप राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। कौन लोग? ये बही ख्वाह अवाम, इसमें आप सब लोग शामिल हैं। आप समझ रहे हैं इनकी माशी हालत खराब है। माशी हालत 2 ही जगह इनकी खराब है ना, या तो इमामत की वजह से और या मदरसे में पढ़ाने की। इसको चलाने वाले कौन लोग हैं? पब्लिक है। आपको जब ये बात मालूम हो गई है कि इनकी माशी हालत खराब है, आप इनकी तनख्वाह का स्केल मुतय्यन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आप कर सकते हैं
आप राह फरार अख्तियार करके एक दूसरी बात से मुतासिर होकर के जो बात कह रहे हैं, जिसके नुकसानात बरामद होने, जो हम अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे कि इन चीजों के नुकसान क्या होंगे, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं इन बही ख्वाहों से कहना चाहता हूं कि आपकी बही ख्वाही को हम सलाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपके हाथ में है इस इकोनॉमिकल मसले को, इस माशी मसले को हल करना। तय कर लिया जाए कि अगर कोई आदमी मदरसे में पढ़ाएगा तो मदरसे में 3 तरीके की पढ़ाई होती है। कुछ लोग नादरा पढ़ाते हैं, कुछ लोग हिफ्ज़ पढ़ाते हैं, कुछ लोग मौलवी को पढ़ाते हैं। फिर मौलवी को बांट दिया जाए 2 हिस्से में। ये तय कर लिया जाए कि जो जिस स्टेट में पढ़ा रहा है उसके प्राइमरी स्केल की तनख्वाह ऊपर वाले को दे दी जाएगी। यानी जो मौलवी का आखिरी क्लास पढ़ा रहा है उसको वो स्केल दे दिया जाएगा जो एक प्राइमरी के टीचर का होगा। आप यकीन जान लीजिए कि आप उसके बाद से एकदम मामला ये हल हो जाएगा। तो पता चला हमारी माश को हल करने की तरकीब किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आप उसको ना हल करके राह फरार अख्तियार करके एक दूसरी तरकीब जो पेश कर रहे हैं, इसके नुकसानात ज्यादा हैं और नफा कम है। लिहाजा ये मसला मेरा बस चले, जहां चलता है मैं चलाता हूं, मैं यहां भी चलाऊंगा इंशाल्लाह। कम से कम मौलवी की तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए। इससे कम तनख्वाह होनी ही नहीं चाहिए। इमामत की तनख्वाह 20,000 से कम होनी ही नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा मालूम क्या होगा? जो आप शिकायत कर रहे थे और कर रहे हैं कि मालदार के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जब उनको मालूम हो जाएगा कि मौलवी का स्केल प्राइमरी के स्केल के बराबर है और 30,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह पाएंगे, तो ये जो आपको शिकायत है कि यहां पर सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो शिकायत भी अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये जो पहला लोगों का हम इनसे बात करना चाहते हैं कि ये इस मसले को इस तरह हल करने की फिक्र करें, और जो लोग जिम्मेदार हैं, और ये भी बता दें कि हमारी बात पर अगर आपको एक्सक्यूज आ रहा है कि पैसे कहां से आएंगे, एकदम गलत बात है। पैसे वहीं से आएंगे जहां से 10,000 आते हैं, वहीं से 20,000 भी आएंगे। शर्त यह है कि आप अपने नजरिए को बदलें और आप अपनी सोच को बदलें। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान खासकर इस मौजू पर बहुत संजीदगी से गौर करें, वरना ये लाइन दिन पर दिन कोरी होती चली जाएगी और फिर नतीजा ये निकलेगा कि उस वक्त आप इसको हल करना चाहेंगे, इस लिहाज से अब लोग आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादा अभी वक्त है इस बात मसले को हल करने के लिए कि बैठ करके संजीदगी से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संजीदगी से बैठे। दारुल ने अपना मसला हल कर लिया, दारुल देवबंद ने, उसने अपनी तनख्वाहें हाई फाई कर डाली। अरे वैसे हम कहते हैं हमारा बुजुर्गों का इदारा है। अरे बुजुर्गों का इदारा तनख्वाह भी मान यार, तनख्वाह में बुजुर्गों का इदारा मानने के लिए तैयार नहीं। वैसे हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग सब चीज में मानो भाई। उन्होंने अब जिस तरीके से अपनी तनख्वाहों को उठा करके रखा, 40,000 तक 42,000 तक तनख्वाह दे रहे हैं, वो आप भी उठा करके 42,000 तक तनख्वाह रख दीजिए। चलो ठीक है, वो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, लेकिन कम से कम प्राइमरी लेवल पर आ जाइए। 25,000 रुपए, 30,000 रुपए कम से कम जो है वो मदारिस के पढ़ाने वालों की तनख्वाह रख दी जाए, शान भी बढ़ जाएगी। जो चूंकि अब एक आदमी साइकिल चला करके जब आपका इमामत करने जाता है, और एक आदमी मोटरसाइकिल से जाता है, और एक आदमी कार से जाता है, तीनों आदमी की इमामत में जमीन आसमान का फर्क है। पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनके दिल में नहीं असर हो सकता है, क्योंकि आप इंसान हैं, और इंसान कितना भी काबिल हो जाता है तो इंसानी कमजोरी के दायरे को क्रॉस नहीं कर पाता है। मैं अपनी बताता हूं, मैं छोटा सा मौलवी, मैं कार से जाता हूं भाई धारवाड़ में। हमने कहा मैं आऊंगा तकरीर करने, आपको कार भेजना। उन्होंने कहा हजरत भेजेंगे। क्या करेंगे? भेजेंगे। एक आदमी कार का दरवाजा खोल रहा है, एक आदमी उतार रहा है। उसके असरात जब मुरतब होते हैं तकरीर पे, तो पहले से, अब मिसाल के तौर पर हमारी यही बात अगर प्रेसिडेंट बोल दे तो कितने नतायज बरामद होंगे? जबरदस्त किस्म के नतायज। बात हमसे अच्छी नहीं करता प्रेसिडेंट, आज भी बात पीएम आप हमसे अच्छा नहीं करता, लेकिन सिर्फ जिस जगह से बोलता है, जिस स्टेज से बोलता है, उसका लोगों के ऊपर पहले से क्या है, रोक पड़ा हुआ है, लिहाजा उसकी बात का चर्चा होता है। छोटी सी बात बोलता है, लगता है इतनी बड़ी बात बोल दिया है। हम तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात बोल दिया है कि जो पूरी मीडिया जो है चिल्ला रही है और उसकी तारीफ कर रही है। लिहाजा नफ्सियाती तौर पर सारी बातें अगर खत्म हो सकती हैं अगर ये बही ख्वाह लोग असल चीज को हल करने के लिए पकड़ लिया है नब्ज आपने, नहीं असल बीमारी पकड़ ली है
कि असल बीमारी माशी तंगी है, उस माशी तंगी को हल करने का जो तरीका आपने अख्तियार करना चाहा है या जो नजरिया आपने पैदा किया है कि इसको मॉडर्न बना दिया जाए तो मसले का हल हो जाएगा, मेरी समझ से ये मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल आपके हाथ में है। आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे। मालदार नंबर 1, मैं ये बात पे करके खत्म करता हूं, मालदार लोग मदारिस में चाहेंगे बच्चों को पढ़ें, नंबर 1। इसकी मिसाल आपको देखनी है तो आप भटकल देख लीजिए और गुजरात देख लीजिए आप जा करके। दूसरा मसला यह हल हो जाएगा कि आवाम जो उसके पीछे नमाज पढ़ रही है, तकरीर सुन रही है, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर उसकी इज्जत उसके दिल में बैठेगी। नंबर 3, जो आपको हर 25 तारीख को सलाम मारता है, इमाम साहब और पढ़ाने वाले मौलाना लोग मोतमिम साहब को सलाम मारते हैं और अवाम को सलाम मारता है इमाम, क्योंकि 25 दिन के बाद अब उस बेचारे के पास 5 दिन का खर्चा नहीं है, उसको कर्जा लेना है। कर्जा लेकर के अपने फैमिली के लिए दूध लाता है और ब्रेड लाता है, वो सलाम मारना बंद हो जाएगा और मालदार लोग भी इस लाइन में आएंगे। तो वो आपकी जो शिकायत है कि सिर्फ गुरबा इसको पढ़ते हैं इसलिए इनके अंदर करेज नहीं होता, फला नहीं होता, दुनिया भर की उसकी शिकायत है, वो सारी शिकायतें हल कर सकती हैं और उसका हल आपके पास है। ये पहली वजह थी। इंशाल्लाह जिंदगी रहते इस पर और बात करेंगे। हर तकरीर अपनी जगह पर एक तकरीर होगी, कोई ये ना समझे कि मैंने पार्ट 2 नहीं सुना, तो पार्ट 1 अपनी जगह खुद एक क्या है, तकरीर है। इंशाल्लाह जिंदगी रहते इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।